Hello dear TYPSC. So in the last lecture we have seen the different types of domains which are present in the immunoglobulin or antibody. Here we are going to see the last point of this chapter, which is antibody diversity. Now what is antibody diversity? So we all know that we get attacked by about millions of the antigens or epitope. So our immune system has that ability that they can produce different antibody or the specific antibody for the specific antigen. Now this diversification or this ability of an antibody to produce, like this ability of our body to produce different types of antibody, is known as the एंटीबॉडी डाइवर्सिटी. मतलब जितने भी एंटीजन्स हो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो उतनी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है. भले वो हज़ार हो वो मिलियंस में हो, हमारी बॉडी उतने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस करती है. दिस इज़ नथिंग बट द एंटीबॉडी डाइवर्सिटी. नाउ वी ऑल नो, we must have heard somewhere or we must have learned in genetics that one gene encodes for one protein. Now we know immunoglobulins are proteins, antibodies are proteins, and according to one gene and one protein concept, we must be aware that one antibody requires one gene. But here our body gets attacked by millions of epitopes or millions of antigens. Then how is it possible to our body to produce this much of antibodies, like millions of antibodies? How our body makes those? We must be thinking like हमारे बॉडी में तो मिलियन जीन्स होंगे तो मिलियन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती होंगी. नो, फैक्ट क्या है? इट इज़ fact that around 40,000 genes are present in our genome. Only 40,000. Compare. So now these genes have that ability that they encode for the different proteins, and so only अगर इतने सारे प्रोटीन्स है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट ही प्रोटीन होता है, हर चीज़ प्रोटीन है. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारी बॉडी जो है मिलियंस ऑफ एंटीजन्स के लिए मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे 40,000 जीन से? कैसे पॉसिबल है ये? सो दिस एंड ऑल्सो इट इज़ अ फैक्ट दैट हमारे एंटीबॉडीज़ के लिए जो है ओनली फ्यू जीन्स आर like allotted, few genes are allotted only, and but our immune system apparently produce the antibodies of around 10 raised to 10. So how is it possible? So talking about that कि एंटीबॉडीज डाइवर्सिटी हमारे बॉडी में होती है, कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह होता है बॉडी की जीन्स में, कुछ रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे हमारी बॉडी कैन प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़. फिर वो कितने भी एंटीजन हो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी जनरेट होती है. सो वहाँ पे डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यू हैव ओनली वन टू स्टडी विच इज़ क्लास स्विचिंग. मतलब कैसे हमारी एंटीबॉडी की क्लास, मतलब एक ही जीन है तो उससे 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, वी आर गोइंग टू सी दैट. सो टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक सिक्वेंसेस अबाउट द लाइट चेन एंड हेवी चेन, बहुत सी चीज़ें मैंने डोमेन में ही बता दी आपको, बट यहाँ पे अगेन वी विल रिवाइंड दैट दिस लाइट चेन, दिस आर एनकोडेड बाय 3 जीन्स. एक तो होता है वेरिएबल जीन विच इज़ वी जीन, J gene, C gene which is constant gene, and V and J together encode for the variable region, and C gene only encodes for the constant region, क्योंकि constant region थोड़ा बड़ा होता है. So now या तो फिर वो वैरी नहीं करता. Then a complete L is formed by splicing, मतलब together they bound the V, J and C gene. Now heavy chain जो है which is like encoded by 3 genes only, VH gene, VJH gene which is for joining, then DH gene which is for diversity. that heavy chain का आपको पता है कि different classes जो है वो heavy chain की वजह से ही होती है. तो constant region is encoded by only one single gene, because constant region जो है it is constant, तो वो एंटीजन टू एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी इतना वैरी नहीं करता. H chain has C segment has 9 genes. So जो H chain है उसका जो constant region है it has around 9 genes. So now how the isotopic sequencing or isotopic switching or the class switching is done of the antibodies? So generally
जो हमारे बॉडी में कन्वर्जन होता है कि जब ज़रूरत हो तब वैसी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, एज आई टोल्ड यू। तो ये क्लास स्विचिंग कैसे होता है, मतलब आईजी अगर है बॉडी में तो उसका कन्वर्जन कैसे आईजीई में हो जाएगा जब ज़रूरत है, कैसे उसका कन्वर्जन आईजीएम में हो जाएगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। और इवन स्पेसिफिसिटी फिर भी रिटेन होती है, मतलब उनकी स्पेसिफिसिटी सेम ही रहती है बट स्विच हो जाते हैं वो एक दूसरे में। Then the switching is dependent on the antigenic stimulation and is induced by the cytokine released by the T helper cells and requires the CD40L। तो आपको पता होगा CD40L बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टार्स है जो टी सेल्स पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो क्लास स्विचिंग होती है जनरली स्टिमुलेट कौन करता है, साइटोकाइंस। दे स्टिमुलेट दैट क्लास स्विचिंग। साइटोकाइंस में एक एबिलिटी रहती है कि वो टी हेल्पर सेल के मदद से जो रिलीज होती है, लाइक टी हेल्पर सेल वी नो रिलीज द साइटोकाइंस, तो वो टी हेल्पर सेल जो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं उन पे डिपेंडेंट है कि कौन सा एंटीबॉडी इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। सो द साइटोकाइंस आर थॉट टू बी to alter the chromatin structure, making the switch sites from more accessible to recombinases for जीन ट्रांसक्रिप्शन। नाउ ये साइटोकाइंस में एक ऐसी एबिलिटी है कि वो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, उसका स्विचिंग कर सकता है यूजिंग द एंजाइम। वो जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है उसका असेसमेंट ये कर सकते हैं, उसकी जो है वी कैन से रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स को एक्टिव कर सकते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स द क्लास स्विचेस लोकेटेड इन द इंट्रॉन्स अपस्ट्रीम ऑफ द सी एच एक्सेप्ट द सी गैम्डा, सो नाउ सी डेल्टा सॉरी। ये जो है स्विचिंग जो होता है, ये जो स्विचिंग होता है इट इज़ टेकिंग प्लेस एट द अपस्ट्रीम ऑफ द सी एच रीजन। जो जीन होता है विच एनकोड्स फॉर द हेवी चेन, उसका जो सी एच पार्ट है उसके अबो, अब मैं आपको जीन भी दिखाऊंगी तब, वो उसके अबो जनरली जो स्विच ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन होता है। एंड स्विच साइट्स फिर क्या होते हैं या स्विच ग्रुप्स क्या होते हैं, उनमें कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो around 3 to 7, like suppose GACCT, we know amino acid GACCT के n number of units, it may be 3 or 7 units of GCT के, एंड उसके बाद रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं ग्वानिन के GGGG एंड T। सो ये जो रिपीट यूनिट्स है इसका सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द स्विच साइट। नाउ क्लास स्विचिंग कब होता है, वो हमारे जो नाइव बी सेल्स या इमैच्योर बी सेल्स में नहीं होता, दे रिक्वायर द मैच्योर बी सेल, उनमें होता है। लाइक मेमोरी सेल्स में भी होता है, बिकॉज मेमोरी सेल में ऑब्वियसली सब मेमोरी स्टोर करने के लिए इतनी सारी सेल तो नहीं होगी बॉडी में, सो मेमोरी सेल का भी क्लास स्विचिंग होता है, तो उसमें भी होता है, बी सेल्स में भी होता है बट मैच्योर बी सेल्स में। एंड जो वी जे एंड डी सॉरी वी डी जे रीजन जो हमने देखा अभी जीन्स, वो उनके डीएनए जब बनता है इन सेल्स का तभी वो अरेंजमेंट होती है वी डी जे की। बाकी स्विचिंग ये बाकी रीजन में होता है, बाकी जो जीन्स है उनमें होता है, लाइक गैमडा के जीन हो या एप्सिलॉन के जीन हो, म्यू के जीन हो, यू कैन सी इन द डायग्राम हियर। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द स्विचिंग, क्लास स्विचिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीन लूपिंग होता है और उसके बाद जो है रिकॉम्बिनेशन होके इट गिव्स राइज टू द न्यू सेगमेंट, उसकी वजह से जो है क्लास एक दूसरे में वो लोग स्विच हो सकते हैं। So here in the diagram you can see the class switching of the antibodies. So this is the VDJ, this is the class switching जहाँ पे VDJ region आपको सब में constant दिख रहा होगा, it does not get switch over there, उसके बाद के जो भी sequences है it gets switched over there only, तो you don't need to remember which is the place for the which gene, बट हियर यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो दिस प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बॉडी में कितने एंटीबॉडीज़ है और कितने सारे एंटीजन्स एंटर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी एंटीजन्स को स्विच कर पाए, बना पाए, इज़ नोन एज द क्लास स्विचिंग and it is known as the antibody diversity. With this point we are ending this chapter here. I hope you have understood this chapter and I will forward you the notes. Thank you.